Good afternoon, everyone. So today we'll talk about primary health care. Um, First of all, healthcare. It is defined as multiple services rendered to individuals, families, or communities by the agents of health services or professionals for the purpose of promoting, maintaining, monitoring, or restoring health. So basically हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं या एजेंट्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो हॉस्पिटल के ऑनर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो भी मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या रेंडर करते हैं इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को या कम्युनिटीज को, उसी को ही हम हेल्थ केयर कहते हैं. Now coming to levels of healthcare, there are three levels of healthcare: primary level, secondary level and tertiary level. तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो फर्स्ट लेवल है हमारा, इट इज इन बिटवीन द रेसिपेंट ऑफ केयर एंड द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम. बेसिक जो होता है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो प्राइमरी लेवल है वो पीएचसी, सब सेंटर और सीएचसी को हम कहते हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एट दिस लेवल आर सॉल्व्ड बाय द पीपल विद सम असिस्टेंस एंड गाइडेंस ऑफ हेल्थ वर्कर्स. In rural area, these services are given by the means of subcenters, PHC and CHC. In urban areas, these services are given by MCH and family welfare centers and dispensaries. ठीक है, अभी अर्बन CHCs भी हम इसमें काउंट करते हैं, अर्बन PHCs और अर्बन CHCs. ठीक है, उसके बाद है हमारा secondary level healthcare. At this level, more complex problems are taken care. मोस्टली जब हम रेफरल सर्विसेज पढ़ते हैं तो हमें उस टाइम पे पता होता है कि प्राइमरी लेवल पे फर्स्टली वी हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. अगर हमसे डील नहीं हो रही है या हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, देन वी विल रेफर इट टू सेकेंडरी लेवल. सो हियर वी डील विद मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, mostly which require secondary level of preventive services and curative services. These services are provided at CHC and district health centers and hospitals. CHC को हम first referral unit FRU भी बोलते हैं. So those cases which cannot be handled at PHC or sub-centers are referred to CHC or district health centers. Now coming to tertiary level healthcare. This level of healthcare is provided at state or regional or central level institutions. These institutions serve as a referral units for primary and secondary levels. They also serve as a teaching institution for education and training of various categories of healthcare professionals. So basically, यहाँ पे जितने भी state के hospitals हैं, institutions हैं, regional level institution है, central level institutions है, वो सभी आते हैं. Apart from that, teaching जो hospitals होते हैं और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर्स, ये सब होते हैं, ये सारे हमारे टर्शरी लेवल हेल्थ केयर में आते हैं. Now, primary healthcare is essential healthcare and technology based on practical, scientifically sound and social acceptable methods, and technology made universally accessible to individuals and families in the community by means acceptable to them through their full participation and at the cost that the community and country can afford. So बेसिकली जो बेसिक जो हेल्थ केयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको कि जो फैसिलिटीज को, जिसके कॉस्ट को जो है कम्युनिटी के लोग और कंट्री अफोर्ड कर सके. ठीक है, यूनिवर्सली असेसिबल हो, साइंटिफिकली साउंड हो, सोशली एक्सेप्टेबल हो, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो. ठीक है, तो ये इन जितने भी ऐसी हेल्थ केयर है उसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर. Concept क्या है? Concept of primary healthcare was introduced at international level jointly by WHO and UNICEF at the Alma-Ata conference in 1978 to achieve the goal of health for all by the year 2000 AD. Now, what are the principles? This concept is based on 5 principles. First is equitable distribution. Second is coverage and accessibility. Third is community participation. Fourth is multi-sectoral approach. And fifth is appropriate health technology. Now,
Next is human resource services by community health worker, referral system, logistic supplies, and physical facility control and evaluation. So firstly we will talk about equitable distribution. Primarily जो है हम पढ़ेंगे equitable distribution, coverage and accessibility, community participant, multi-sectoral approach, appropriate health technology. So firstly equitable distribution में कि जितनी भी healthcare services हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, वो सभी लोगों के लिए बराबर हों. देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिच, पुअर, एनीथिंग. ठीक है, तो वो जब जिसके भी सबके लिए हैं वो बराबर होनी चाहिए. सो there will be equitable distribution of all the primary healthcare services to all people. Then coverage and accessibility. Then primary healthcare aims to provide healthcare to all the population living in any geographical area. चाहे वो remote area में है, चाहे वो कहीं भी है, hilly area में है, कैसे भी एरिया में है, हमें जितनी भी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं वो सब तक पहुंचानी है. हमें सारी पॉपुलेशन को कवर करना है. ठीक है. उसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज assume responsibilities for their own health and welfare and for those of the community and develops the capacity to contribute to their country's development. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जब हम खुद से जो है जिम्मेदारी ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी खुद की हेल्थ की, और हम उन हेल्थ केयर के सर्विसेज में खुद कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, खुद पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, तो then it is called as community participation. Then multi-sectoral approach means only health sector single-handedly cannot achieve the goal of health for all. So there must be a coordination with other sectors apart from health sector also. ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया हमारा जो है टीचिंग सेक्टर हो गया, एजुकेशनल सेक्टर. ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है. ठीक है. उसके बाद है अप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी. इट इम्प्लाइज द यूज ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स विच आर साइंटिफिकली साउंड बट सिंपल. जितने भी हमारे जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज आ रही है, रिसेंट जो नए नए इक्विपमेंट्स बन के आ रहे हैं, टेक्निक्स यूज हो रही है, मेथड्स यूज हो रहे हैं, तो हमें उनको यूटिलाइज करना है, बट दे मस्ट बी साइंटिफिकली साउंड आल्सो. ठीक है. सो जो भी अप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी है, वी मस्ट यूज दैट इन ऑर्डर टू ट्रीट द पेशेंट, इन ऑर्डर टू डायग्नोज. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा मल्टी सेक्टोरल अप्रोच हो गया. Human resource for effective implementation of primary health care. It is essential to make full use of all the available resources, including the human potential of whole country. जितने भी हमारी जो प्राइमरी हेल्थ केयर या जितनी भी हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, वो सर्विसेज तभी इफेक्टिव उनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है जब हमारे रिसोर्सेज पूरे होंगे, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे तो जो है हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, मान लीजिए. ठीक है, मटेरियल है, हमारे पास मनी है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो हम उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हम उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे प्राइमरी हेल्थ केयर को. तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसका होना बहुत जरूरी है. उसके बाद है सर्विसेज बाय कम्युनिटी हेल्थ वर्कर. कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो होते हैं हमारे आशा वर्कर हो गए, हमारे हेल्थ विजिटर्स हो गए, एलएचवी हो गई. ठीक है, जो हमारे एएनएम्स हैं वो हो गई. ठीक है, तो जितने भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन कम्युनिटी पीपल एंड हेल्थ सिस्टम. ठीक है, वो हमें जोड़ते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम को कम्युनिटी के लोगों से, क्योंकि वो लोग उन्हीं में से एक होते हैं, उन्हीं में से चुने हुए लोग होते हैं वो, तो उनका डायरेक्ट लिंक होता है. सो दे आर गिवन शॉर्ट एंड सिंपल ट्रेनिंग टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ सिंपल एंड बेसिक हेल्थ नीड्स ऑफ द पीपल. इसलिए उनको जो है
दी जाती है छोटी और सिंपल ट्रेनिंग, ताकि वो छोटी मोटी जो बेसिक हेल्थ नीड्स है लोगों की वो उनको पूरी कर सके। उसके बाद है रेफरल सिस्टम। The patients with severe condition unable to treat at primary level should be referred to the higher or specialized centers for the proper treatment. You all know. Then logistics of supply, it includes planning and budgeting of the supplies required, procurement or manufacture, storage, distribution and control. Like human resources, there are 3 M's. मैं बात करती हूँ हमेशा 3 M की, मैन पावर, मनी एंड मटेरियल। तो मैन पावर है, मनी है, हमारे पास मटेरियल नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो तीनों का ही होना बहुत जरूरी है, मैन पावर, मनी एंड मटेरियल। सो यहाँ पे सप्लाई यानी मटेरियल की बात हो रही है, तो इसके लिए प्लान किया जाना चाहिए, बजट पास होता है। ठीक है, कि कितनी सप्लाईज हमें चाहिए, कितनी जो है हमें मैन्युफैक्चर करवानी है, स्टोरेज कितना है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूट कितनी करनी है हमें, और हम उसका ऊपर कंट्रोल होना चाहिए किसी पर्टिकुलर ट्रस्टवर्दी पर्सन का। सो लॉजिस्टिक ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, कुछ एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, like education to the people concerning prevailing health problems and method of preventing and controlling them। जो किसी को कुछ जो कम्युनिटी के लोग हैं जिनमें कुछ पहले से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स है, उनको एजुकेट करना और उनको मेथड्स बताना कि कैसे हम उसको प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, adequate supply of safe water and basic sanitation, maternal and child health care and family planning, immunization against the major infectious diseases, prevention and control of locally endemic diseases, ठीक है, appropriate treatment of common diseases and injury, provision of essential drugs. So this was all about today. Thank you so much. If any query, you can ask me anytime.